but the class was interrupted in between because of the power failure and all. We know how to start with the question. Let's start. The very first thing is that we should mention the condition. The condition for infinite number of solutions is A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. This is the first problem. That's why I'm not asking the answer from your side. From the next one, I will ask the answers. Okay, chaliye. So replace the values of A1, A2 in the equation. 2 upon K minus 1 is equals to 3 upon K plus 2 is equals to minus 7 upon minus 3, or you can simply write 7 upon 3K, because minus से minus has to be divide होके होना तो positive ही है. Now, as we have discussed it earlier, now we are having three ratios, two sign of equality here. We can equate any two of these. That means, like, suppose I want to equate the first and the second. So I am ignoring the third one. From first and second, I will get 2K plus 4 is equals to 3K minus 3. That means minus K is equals to minus 7, or K is equals to 7 should be the value of K. Now we should not have any doubt, any sort of doubt in it, that why we have taken first and second only. Why we have not taken the second and third? Yes, sure, we can take second and third also. Like suppose somebody has taken 3 upon 2 plus K plus 2 is equals to 7 upon 3K. That means he is equating the second and the third ratio. Then it will be 9K is equals to 7K plus 14, or 2K is equals to 14K is equals to 7. Someone else, he says, why we have taken second and third only? Why we have not taken the first and the third? Why we have not taken first and third? Suppose somebody says, okay, I am ready to take the first, I am going to equate the first ratio with the third ratio. Then 2 upon K minus 1 will be equal to 7 upon 3K, when 6K will be equal to 7K minus 7, or K is equal to 7. हमें यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि ये इन्फिनिट नंबर ऑफ चॉइसेस का क्वेश्चन था. फर्स्ट रेशियो को आप सेकंड से कर रहे हैं, सेकंड को थर्ड से इक्वेट कर रहे हैं, या फर्स्ट को थर्ड से इक्वेट कर रहे हैं, यू विल गेट द सेम आंसर. एंड वी हैव टू इक्वेट एनी वन ऑफ दीज. ये नहीं कि तीनों करके दिखाए हम एग्जाम में, लेकिन हम इनमें से किसी को भी ले सकते थे, जो हमें चॉइस में अच्छा लगता वो ले लेते, है ना. So to find the value of K, it is very simple. When we are having the two sign of equality, we can equate the first with second ratio, or second with third, or first with third. The choice is ours. No. Now I'm changing the equations, and this time I want the answers from your side. So get ready with your rough copies and all. Let's take another example, and let's find out the value of K in this. He says the equations are 3K plus 1 is equals to 3K plus Y is equals to 1, and the other equation is 2K minus 1X plus K minus 1Y is equals to 2K plus 2. What should be the value of K for which the system has infinite number of solutions? Just raise your hands if you are having the answer. For infinite number of solutions, we know that the condition is same. The A1 upon A2 should be equals to B1 upon B2 should be equals to C1 upon C2. When we have many infinite number of solutions, so 3 upon 2K minus 1 is equal to 1 upon K minus 1 is equal to minus 1 upon minus 2K minus 1. Either you write it in this manner, or you can simply take minus as common. So you can write 1 upon 2K plus 1 also. Any of these two ratios you can equate. This is your choice which ratio you want to equate, because both of them are having the sign of equality. इज इक्वल टू का साइन है, दोनों में से के की वैल्यू किसी से भी आ जाएगी. इससे कोई भी दो रेशो ले लो, तो क्यों ना अपन इस थर्ड को इग्नोर मारते हैं. चलो ठीक है. सो 3K minus 3 is equals to 2K minus 1, K is equals to प्लस का 2 ही आ रहा है भाई. बन गई गवर्नमेंट. सही बात है, आपकी बात सही थी. दीक्षिता को आई होप she must have learned from her mistakes, because Dikshita always remember we learn from our mistakes. Unless and until we will commit mistake, we will not learn, right? And this is mathematics, of course. Errors
and mistakes are a part of mathematics. Now, the equation I'm writing on the whiteboard for you. And again, this time again, I want the answers from your side. Let me know the value of k for which the system has, this system has infinite number of common solutions. Yes. This time I want a new child. Somebody else. इनके अलावा जिन्होंने आंसर दिया उसके अलावा भी path. Let's come to the serious section now. When the system has infinite number of solutions, we have to find out the value of k. So k upon 2k plus 2 is equals to 3 upon 9 is equals to minus 2k plus 1 upon minus 7k plus 1. चलिए बहुत सिंपल, 3 upon 9 का आपने कर दिया होगा 1 upon 3 और इसे यहीं पे काम बन जाएगा आपका क्या 3k is equals to 2k plus 2, तो k is equals to 2. इससे इजी या सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता था मेरे ख्याल से। ये अब तक का जितने भी रेशो के क्वेश्चन किए उस सब पे ये सबसे सिंपल रेशो था। ये यहाँ पे क्लियर कर दो, फिर वापस से आप डाउट मत देखिएगा कि बुक में मैंने देखा था सर फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया था, अपन ने तो फर्स्ट और सेकंड को किया। आप सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर दीजिए, जिससे मर्जी करिए, आपके पास आंसर यही आना है। ठीक है, राइट। चलो अब दो वेरिएबल्स में चलें। अगर हमारे पास में दो वेरिएबल्स हो, यानी ए और बी की वैल्यूज निकालनी हो और इनफिनिट नंबर ऑफ का केस हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस हो, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। चलो 2x minus 3y is equals to 7 and the other one is a plus bx minus a plus b minus 3y is equals to 4a plus b. चलिए थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है, लेकिन ऑफ कोर्स क्वेश्चन भी ये सी या डी सेक्शन का है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b for which the system has infinite number of solutions. सर मैंने ये वाले नहीं लिए सर, मैंने ना वो लिया था 7 वाला लिए थे। कोई बात नहीं, आप बताओ कौन सा लेना है आपको। मैं आप लेटर आप इस रेशो पे आओगे। चलो कोई बात नहीं, हाँ जी बताओ कौन सा लिया आपने। सर मैंने 3 upon 9 equals to 2k plus 1 upon 7k plus 1 लिया है। दोबारा से सोच लो क्या बोल रहे हो। मैं तो के का क्वेश्चन ही करा रहा, मैं तो ए और बी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, जागो, उठो, ढंग से बैठो और स्टडी टेबल पे बैठो और देखो वेरिएबल्स को एक तरफ ले लो। माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 6 हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू -6। ठीक है कपिल? हाँ सर। ठीक है, अब एक और रेशियो बताओ फटाफट मुझे। सर आप ले लो सर, ये कौन सा वाला 3 upon a प्लस बी माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7 upon 4a प्लस b। ठीक है, मुझे फटाफट स्टेप बता बेटा, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ सर आएगा 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -21। 12a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b माइनस 21। ठीक है कपिल, अब इसके बाद का स्टेप बताओ बेटू। 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -21। 5a माइनस 4b इक्वल्स टू -21, ये बता रहे हो आप? हाँ ठीक है, ये आपको सेकेंड इक्वेशन आ गई बेटा। अब a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर इक्वेशन में पुट करनी होती है। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, जो कि हमने सबसे पहले जैसे ही लॉकडाउन के बाद जब भी समय ब्रेक के बाद में अपन ने स्टार्ट किया था तो अपन ने सीखा था। अब इसके बाद बिकॉज सिंस वी आर हैविंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वी कैन सॉल्व इट इन द मैनर इन विच वी आर कंफर्टेबल। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि चैप्टर मैंने वैसे स्टार्ट नहीं किया जैसे एनसीईआरटी ने किया था स्टार्ट, मैंने वैसे स्टार्ट किया जैसे मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए। नाउ वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ सिस्टम वेयर a plus b is equals to -6 and 5a minus 4b is equals to -21, and we have to find out the values of a and b, and we are having the choice of implementing the substitution method or the comparing the coefficient method, also known as elimination method, या फिर अभी जो मेथड अपन सीखने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मेथड से a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, इसीलिए ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड इजी है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा। ठीक है कपिल, थैंक यू बेटा। चलो मेरे को क्लास लेने दो। 4a plus 4b इक्वल्स टू -24
24. 5a minus 4b equals to minus 21. So 9a will be equal to minus 45 or a is equals to minus 5. When a is equals to minus 5, we can substitute the value of a in the first equation. The first equation was a plus b is equal to minus 6, where a is minus 5. So b is minus 6 plus 5 or b is equal to minus 1. So the values are correct. A is minus 5 and b is minus 1. Again, a linear equation into variables, a pair of linear equation into variables can be solved in 4 different manners other than the graphical manner, means algebraic manner. उसमें से मैं comparing the coefficient या elimination method लगा रहा हूँ, b को eliminate कर रहा हूँ, आप a को कर सकते हैं, आप कैसे भी करेंगे आपके पास आंसर आएगा, और इसीलिए आपको सिस्टम पहले समझाया गया था कि elimination method सीख लीजिए या comparing the coefficient method सीख लीजिए, ठीक है? Today I will give you the questions directly the questions for your homework of elimination method, because we have discussed it earlier in the class. Okay, I hope you will be able to do them. Let's take one more example. अब वरुण की बात लेते हैं. हाँ, sorry, वरुण बजाज ने पूछा था मेरे से कल कि what is the value of k for unique solution वाला भी एक सिस्टम करवा दीजिए. चलो, वरुण, suppose he says for what value of k the following system or following linear equation has unique solution, has a unique solution, that means one solution, perfect solution हो, इसकी क्या वैल्यू, k की क्या वैल्यू होनी चाहिए. Suppose the system is provided to us like this. उसने कहा कि आपका सिस्टम है, मान लेते हैं ये, और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना? So the very first thing is that we should know about the condition for unique solution. For unique solution, a1 upon a2 should not be equals to b1 upon b2. a1 upon a2 should not be equals to b1 upon b2. So a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. ठीक है, कंडीशन लिखा, फिर अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. k upon 5 should not be equals to 3 upon 9. That means 1 by 3. So k upon 5 should not be equals to 1 by 3. So what k should not be equals to? K should not be equals to 5 upon 3. k क्या नहीं होना चाहिए? 5 upon 3 नहीं होना चाहिए. अब सीधे सवाल का उल्टा जवाब दे रहे हैं. सीधा सवाल पूछा था उसने क्या होनी चाहिए k की वैल्यू, और हम बोल रहे हैं k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए. तो हमने आंसर तो दिया ही नहीं उसको एक तरह से कि क्या नहीं होनी चाहिए. तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए therefore except k is equals to 5 by 3, k can have any real value. किसी भी और वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन एनी वैल्यू भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आपने इमेजिनरी नंबर्स अभी नहीं पढ़े हैं. तो यू कैन राइट k कैन हैव एनी वैल्यू, अदर वैल्यू देन व्हाट, एक्सेप्ट 5 upon 3. 5 upon 3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होना चाहिए. ठीक है, चलो एक सिंपल तरीके से समझते हैं. मान लेते हैं ये क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, और अपने को यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ पे 2, और उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम हैज इन a unique solution, has a unique solution, suppose it says, right? So k upon 1 should not be equals to 4 upon 2. भाई a1 upon a2 क्या नहीं होना चाहिए? b1 upon b2 नहीं होना चाहिए. That means k should not be equals to 2. k 2 नहीं होना चाहिए. क्या हो जाएगा अगर 2 होगा तो? चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इस सिस्टम में, अगर k की जगह 2 मान लें, तो देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं होगा. फिर a1 upon a2 will be equals to b1 upon b2 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए यूनिक के लिए. तो यूनिक के लिए क्या चाहिए? k is not equals to 2. वो पूछ रहा है क्या चाहिए, हम कह रहे हैं k 2 नहीं होना चाहिए. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें मम्मी पूछे रात को कि अच्छा डिनर में क्या खाओगे, तो हम कहें मम्मी खिचड़ी नहीं खाएंगे. तो क्या खाओगे? कुछ भी बना लो, लेकिन खिचड़ी नहीं खाऊंगा आज. बिल्कुल वैसा ही है. तो k is not equals to 2, क्या खाओगे वाली बात है. तो वैसे ही therefore except 2, k can have any value. k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 रखते ही यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी. चलो 2 नहीं रखा, आपने 1 लिख लिया, क्या सॉल्व हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमने इस a की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शनल में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे वो एक इंटीजर हो, चाहे कैसा भी हो, कैसी भी वैल्यू रखते हैं, लेकिन क्या नहीं लिख रहे हैं, क्या नहीं रख सकते वो। तो इसलिए ये कहा जा रहा है आपसे कि इसका आंसर लिखते हुए ये जरूर लिखिएगा, क्या खिचड़ी नहीं खाएंगे, कुछ भी बना लीजिए, तो कुछ भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, राइट, लाइक दैट। सो आई थिंक द थिंग इज क्लियर नाउ। पार्थ ने कुछ क्वेश्चन पूछना था ना, पार्थ, वी आर रनिंग होते हैं जो मिलते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब हमारा जहाँ पे सहमति हो, जहाँ हम मिले, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, एक सॉल्यूशन निकलता है, और लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, यानी ये कंसिस्टेंसी है, मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, किसी एक बात पे, मुद्दे पे तो सहमत हो जाते हैं हम उसके साथ से, है ना, ऐसे समझ लीजिए। इसी तरह से a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो, तो लाइन एक के ऊपर एक आती है, कॉन्साइडिंग लाइंस होती हैं, ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, और हम हर जगह पे उस पर सहमत होते हैं, पहली बात पे भी, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी, जो बातें होती हैं हमारे इस बीच में हम सब पे सहमत हो जाते हैं, उनको हम, इन दोनों को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, कंसिस्टेंट हैं। थ्योरी देखिएगा, वापस से कह रहा हूँ, जिसको क्लियर नहीं हो थ्योरी देखिएगा, थ्योरी में मैंने बिल्कुल लिखवाया है आपको, उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे। इसी तरह से फिर अगर मान लीजिए तीसरा केस है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, तो द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, और लाइंस जो है पैरेलल आती है। इस सिस्टम को इकलौता ये सिस्टम है जो इनकंसिस्टेंट है, ये इकलौता सिस्टम है जो इनकंसिस्टेंट है, ये दोनों कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब सिस्टम होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन भी होना भी कंसिस्टेंसी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना भी कंसिस्टेंसी है, लेकिन कोई सॉल्यूशन ना होना, यानी एक दूसरे के पैरेलल चलना जो है, वो इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन